Hello and welcome to Shriram's IES. Recently, you might have heard this news that Bulgaria is about to join the Eurozone. And what does this mean? How does it impact the entire European Union economic system? And how does it impact the entire European world currency? Or I would rather say, how will it have impact on the entire world currency? Particularly, we should understand that why and how does the currency exchange happen? What effects can this cause to the, I would say, dollar, or what effects will it cause to euro per se, the currency which it is going to adopt? How was the leu, which was its earlier currency, how was it pegged to euro, and how did its change impact its own currency, because Bulgaria is one of the poorest countries of Eurozone. Till now, 27 members, there are 27 members in the European Union. 21, including Bulgaria, have now officially recognized their legal tender currency as euro. They adopted it, and rest of the 6 nations, they still have to adopt it. But we need to understand for UPSC perspective, because European Union per se is important. If you remember, there were around 8 questions asked in UPSC prelims. Let us go through the questions first. This was the first question asked in 2024. This was the second question asked in 2023. The questions are about this only. If you see, the first question talks about European Parliament and European Union. Second is about US and European Union claiming the technological progress. Third is about the broad-based, or I would say BTIA, the trade and investment agreement. Fourth is about digital single market strategy. All of these questions, UPSC has always focused on this particular aspect of the world, that is European Union. Now, before we go deeper into this analysis, there is a short summary so that you understand all of it. Simple सी बात है, Bulgaria now adopts euro as its official currency और legal tender currency. मतलब क्या है इस चीज का? बल्गेरिया अब 21st नेशन बन चुका है जिसकी अब करेंसी होने वाली है यूरो। इससे पहले करेंसी क्या थी? इससे पहले करेंसी थी लेव, ठीक, और इट इज प्रोनाउंस्ड एज लेव, ठीक है, फॉर द यूरो डिस्पाइट रशिया टेंशंस। क्लियर? नाउ व्हाट डज दिस कम अप विद? दिस मींस in the entire European Union, now Bulgaria is more integrated into the Union. Clear? Bulgaria is more integrated into the Union. अब ये जो currency net में आ चुका है, this means that it is more converged towards the European Union entirely, because European Union is based on the concept of single market, with monetary and fiscal policy colliding with each other, not colliding but cooperating with each other. One single union, one single market, where the monetary policy and the fiscal policy go hand in hand in the entire region. Now let's understand it. However, why did this happen? Because there has been a long political instability. पिछले 4 साल में 7 बार पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए हैं, और अभी रिसेंटली दिसंबर में उनने फिर से रिजाइन कर दिया जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे। अब इन सब चीजों के चलते हुए जब बल्गेरिया ज्वाइन करता है यूरोपियन यूनियन और ऑफिशियली अडॉप्ट करता है लीगल टेंडर करेंसी, जाहिर सी बात है क्रिटिसिज्म आएगा। कहां से क्रिटिसिज्म आया? सबसे पहला रशिया से। रशिया सीज इट एज अ थ्रेट टू इट्स सॉवरेनिटी, calls it as a road to Greek style crisis, कि जैसा ग्रीस में इससे पहले क्राइसिस हुआ था वैसे ही क्राइसिस यहां पे होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे। बट बिफोर दैट, सबसे पहली चीज, बल्गेरिया कहां पड़ता है? इट बॉर्डर्स दी ब्लैक सी। ना ब्लैक सी अगर आप देखें तो आपको यूरोपियन यूनियन, इफ यू टॉक अबाउट दी कॉन्टिनेंट्स, तो यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर कॉन्टिनेंटल मैप्स जो होते हैं हमारे एटलस में, वहां पे आपको ये ब्लैक सी मिल जाएगा यूरोप के कॉन्टिनेंट के अंदर। अब इससे रिलेटेड क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले कौन सी कंट्री जिसको सराउंड करती है? तो वी स्टार्ट विद बल्गेरिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया एंड टर्की। यूजुअली this is the mnemonic which is usually intended to remember the names of these bordering nations. One thing. Second, एक और चीज याद रखनी है, ये जो ब्लैक सी है, ये ब्लैक सी मेडिटेरेनियन सी के साथ
कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? तो फर्स्ट यू विल सी मेडिटेरेनियन सी, देन इन दी मेडिटेरेनियन सी ओनली एट दी आई वुड से नॉर्थ ईस्टर्न साइड you will witness there is Aegean Sea और Aegean Sea. Aegean Sea कनेक्ट करता है सी ऑफ मरमरा के साथ थ्रू द डार्डेनेलिस स्ट्रेट। ठीक है, हाँ, पहले मेडिटेरेनियन सी, उसके बाद एगियन सी, उसके बाद डार्डेनेलिस स्ट्रेट, और डार्डेनेलिस स्ट्रेट के बाद आता है सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट होता है ब्लैक सी, किसके थ्रू? बॉस्पोरस स्ट्रेट के थ्रू। ठीक है, याद हो गया। तीसरा, अब ब्लैक सी से कर्च स्ट्रेट जाती है और ये कनेक्ट करती है आपको सी ऑफ अजोव के साथ। ठीक है, और अजोव, क्लियर? रिमेंबर दिस इज द लाइन एजियन सी और मेडिटेरेनियन सी, एजियन, डार्डेनेलिस, मरमरा, बॉस्पोरस, ब्लैक सी, कर्च एंड अजोव। ये लाइन ऐसे ही याद रखनी है। रिमेंबर वन मोर थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज कि यहां पे कौन से रिवर्स फॉल करते हैं इस ब्लैक सी के अंदर। फर्स्ट वन इज दान्यूब, Pruth, Dniester, Bug, Dnieper. Then it goes on to Don which goes into Sea of Azov, Kuban also Sea of Azov, and there is one more that is Kizil. बस ये नाम कुछ है जो याद रखने हैं बस। इसके बाद आपका सफ़र जो है वो आसान रहेगा। इस एरिया से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी और प्लेसेस इन न्यूज़ से रिलेटेड। डन। नाउ कुछ और चीज़ें जो मैं यहाँ पे बता दूं, जैसे मैंने अभी बोला था दैट बल्गेरिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है काफ़ी टाइम से, और इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते अब जो ये डिसीजन लिया गया है दैट वी विल अडॉप्ट टोटली, और ये 1 फरवरी से लागू भी होने वाला है वहाँ पे 1 फेब से 2026। तो दैट इज समथिंग विच इज क्रिएटिंग chaos एंड विच इज क्रिएटिंग पैनिक इनटू दी लोकल्स। बट बिफोर वी गो इनटू बल्गेरिया, लेट्स अंडरस्टैंड यूरोपियन यूनियन फर्स्ट। यूरोपियन यूनियन में अगर आप देखें दीज आई वुड से पर्पल कलर कंट्रीज, दे आर द मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। और लेटली यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स पूछे भी गए थे यूपीएससी में। तो रिमेंबर द करंट मेंबर्स आर फिनलैंड, स्वीडन, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, नेदरलैंड, बेलारूस, जर्सी और द यूके। देन जर्सी यूके तो नहीं, फ्रांस। ठीक है, यूके ऑलरेडी हैज टुक द एग्जिट। यूके ने, अगर आपको याद हो, ब्रेग्जिट 2019 वो याद रखना है। यूके के साथ साथ जिब्राल्टर याद रखना है विच इज अ टेरिटरी ऑफ यूके। तो यूके और जिब्राल्टर पार्ट नहीं है अभी यूरोपियन यूनियन के। प्लस कुछ और चीज़ें याद रखनी है, जैसे यहाँ पे ये आइलैंड नेशंस है, कैनरी आइलैंड्स, मेदीरा, अजोरस, ये कुछ ऐसी टेरिटरीज है जो कि स्पेन, पोर्चुगल, फ्रांस की टेरिटरीज है, और ये पार्ट है यूरोपियन यूनियन का, जबकि ये इस एरिया में नहीं पड़ती है, दूर पड़ती है, बट फिर भी पार्ट है किसका? यूरोपियन यूनियन का। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू रिमेंबर। मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन 27 मेंबर्स आर देयर। 27 मेंबर्स का मैप यहाँ पे बना हुआ है, याद रखना है। स्विट्जरलैंड को एक्सक्लूड करना है। क्लियर यहाँ तक? वन मोर थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर, यूरोपियन यूनियन बना कैसे? यूरोपियन यूनियन इट्स अ लॉन्ग बैक स्टोरी। सबसे पहले इट वाज एन आइडिया कि पैन यूरोपियन फीलिंग्स को एक जगह इकट्ठा करो, कि हर साइड से जो यूरोपियन फीलिंग्स है, जो अपने आप को यूरोपियन मानते हैं, उन सब लोगों को एक जगह इकट्ठा करो, एक प्लेटफॉर्म बनाओ उनके लिए। दिस वाज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय विक्टर ह्यूगो। और उस टाइम पे विक्टर ह्यूगो यूज द टर्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप, सिमिलर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद 1949 में देयर वाज फर्स्ट ग्रेट एफर्ट, और सब नेशंस को एक जगह लाया गया और एक काउंसिल बिठाई गई जिसका नाम था काउंसिल ऑफ यूरोप, एंड इट वाज फॉर्म्ड। काउंसिल ऑफ यूरोप वाज फॉर्म्ड इन 1949। 1952 में पेरिस ट्रीटी साइन होती है, पहली बार, इन विच द फेडरेशन वाज क्रिएटेड, द फेडरेशन ऑफ यूरोप। After that, there happened to be the creation of European Coal and Steel Community in order to streamline the policies related to coal and steel. Then 57 में Rome Treaty, उसके बाद Maastricht Treaty, which largely governs the creation of European Union. और 2009 में amendments होती है, किसमें? Maastricht and Rome Treaty में, through the Lisbon Treaty. Understood? Clear? Remember these 4 treaties जो हमने लास्ट में पढ़ी, बस ये 4 ट्रीटीज याद रखनी है, और विक्टर ह्यूगो का एक कॉन्सेप्ट याद रखना है बस, ताकि हमें याद रह जाए। नाउ कमिंग बैक टू बल्गेरिया, बल्गेरिया ने लेव को छोड़ा और यूरो को
अडॉप्ट कर लिया एज इट्स लीगल टेंडर करेंसी। और ये कब से स्टार्ट होगा? 2025 से। इट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1st of January एंड विल बी आई वुड से सोल लीगल टेंडर करेंसी होगी ये बल्गेरिया की 1 फरवरी से। नाउ यूरोजोन है क्या असल में? ये वो कंट्रीज है जो एक कॉमन करेंसी रखती है जिसका नाम है यूरो। क्लियर? मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी 1992 में जो अभी हमने देखी थी, इट एस्टैब्लिश्ड द फाउंडेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, पूरा इकोनॉमिक कम्युनिटी एक बनाना, क्रिएटिंग कॉमन करेंसी, वन करेंसी एंड यूनिफाइड बैंकिंग सिस्टम, मतलब एक ही सेंट्रल बैंक होगा टोटल यूरो जोन का, ठीक है। देयरबाय कॉमन करेंसी, सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम एंड अ इकोनॉमिक यूनियन। क्लियर? रिमेंबर यहां तक। नाउ वन मोर थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज यूरोजोन का लैंडस्केप। अभी कितने मेंबर्स है? मैंने पहले भी बोला था यूरोपियन यूनियन के 27 मेंबर है, यूरोजोन के 21 मेंबर है, ठीक है। आउट ऑफ 27, 21 हैव यूरो एज देयर लीगल टेंडर करेंसी। नाउ दे यूज यूरो एज देयर ऑफिशियल करेंसी। However, there is around the total population which is using this euro is 350 million people. Clear? Bulgaria becomes the 21st nation. 6 members retain their own currency while the 4 microstates use the euro through agreements. ठीक है, out of 6. क्रोएशिया was the last one और अब जो सबसे recent है that is बुल्गारिया। क्रोएशिया ने ज्वाइन किया था 2023 में और उसके बाद अब जाके बुल्गारिया ने ज्वाइन किया है 2025 में। यूरोजोन क्यों ज्वाइन करना है? पहली चीज मैंने बोला दिस इज वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज। सेकंड मैंने बोला देयर हैज बीन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन दिस कंट्री। अब 2 रीजंस ये हैं और तीसरा रीजन ये है कि जो बाकी सारे रीजंस रहते हैं हमें यूजुअली कि एक वन सिंगल ऐसी करेंसी हो जिसका एक्सचेंज इफेक्ट कम पड़े हमारे ऊपर। जैसे मैं आपको बोलूं कि अगर हमारा रुपी और डॉलर का कन्वर्जन देखें हम, तो रुपी और डॉलर का कन्वर्जन मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से इट टच्ड रिसेंटली 90, और अगर मैं परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखूं तो इट इज अराउंड 37 रुपीज जो हमने अभी रिसेंटली पढ़ा था, ठीक है। अब मुझे यह बताओ मार्केट एक्सचेंज रेट की वजह से हमें कितना ज्यादा इनस्टेबिलिटी देखना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ ये भी देखो कि अगर आपने चैनल को फॉलो किया होगा, हमारी चैनल को, तो वहां पे आपने देखा होगा दैट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस इंक्रीज्ड फ्रॉम जस्ट 30 रुपीज टू 90 रुपीज, ठीक है। ये पिछले 70 साल की कहानी है बस। अब आप देखो, और वोलेटाइल ये इतना ज्यादा है कि कभी सडनली डॉलर की डिमांड बढ़ गई, डॉलर की डिमांड डिक्रीज हो गई, तो उससे नुकसान उस इंसान को होता है जो उस टाइम पे ट्रेड कर रहा होता है। क्वाइट ऑब्वियस। तो एक्सचेंज रेट का जो इफेक्ट है या एक्सचेंज मैनेजमेंट का जो इफेक्ट है उसको कम करने के लिए यूजुअली ये ऐसी करेंसी अडॉप्ट की जाती है जो बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो, ठीक है, जिसका एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम या एक्सचेंज रेट के ऊपर उस टाइम पे इंस्टेबिलिटी या वोलेटिलिटी के कारणवश ऐसा ना हो कि उस टाइम पे जो कंट्री है, डोमेस्टिक कंट्री है, उसके ऊपर नुकसान हो। ऑलरेडी पुअर कंट्री है, तो दैट इज वाई फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस ट्रांसपेरेंसी। प्राइस ट्रांसपेरेंसी कंज्यूमर्स कैन डायरेक्टली ट्रैक, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट एक ही है। अब इस मार्केट में एक प्रोडक्ट बिक रहा है, फॉर एग्जाम्पल चेयर, ठीक है, ये चेयर बिक रही है 5 यूरोज की। अब इसी को पहले कन्वर्ट करना है लेव में, तो इट इज बेटर टू कन्वर्ट इनटू लेव, और रादर इट इज डायरेक्टली कि हम यूरो ही यूज करके इसको बाय कर ले। सेकेंड, दिस विल बूस्ट द कॉम्पिटिटिवनेस एंड मार्केट एफिशिएंसी ऑफ दिस नेशन। थर्ड, मार्केट एक्सेस, इजियर मार्केट एक्सेस और इजियर ट्रांजैक्शंस, और इसकी वजह से क्या होगा, शायद यहां पे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगा इस कंट्री में। Price stability. Now remember that this will bring in or the targets 2% inflation, ensuring that economic predictability and lower interest rates are there in this country. And if there are lower interest rates, there will be more investment, and if there is more investment, that will eventually lead to growth. Clear है यहाँ तक? अगर अब इन्होंने यूरो को एज अ लीगल टेंडर करेंसी अडॉप्ट कर लिया है, तो अब इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं? बेनिफिट नंबर 1, इट विल एलिमिनेट द एक्सचेंज कॉस्ट, जो हमने पहले भी समझा। इट विल प्रोटेक्ट द इकोनॉमी फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स लाइक इंसुलेशन फ्रॉम इकोनॉमिक वोलेटिलिटी, क्योंकि इंपैक्ट आएगा वर्ल्ड रिसेशन का या वर्ल्ड इकोनॉमिक। फॉर एग्जाम्पल 2008 जैसी क्राइसिस अगर दोबारा होती है, विच वॉज लाइक बैक देन इट हैड इट्स रूट्स इन यूएस, अगर वैसी क्राइसिस दोबारा होती है तो पूरे का पूरा यूरो और यूरोजोन जो है वो पूरा इंपैक्ट होगा, एक सिंगल करेंसी इंपैक्ट नहीं होगी। दैट इज व्हाई इट विल प्रोवाइड एक्सटर्नल शॉक
protection because euro is more stable than lib. Free trade benefits, unrestricted flow of labor, goods, services can happen and even capital also. Bulgaria gains a seat at this governing council, ECB's governance council. ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, अब बल्गेरिया कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ एंटायर यूरो जोन. ठीक है, जो कि एक सिंगल मॉनेटरी पॉलिसी होती है, तो वहां पे बल्गेरिया को भी सीट मिल गया. अंडरस्टूड. बल्गेरियाज यूनिक एडवांटेज, अब बल्गेरिया इससे क्या कर सकता है, बेहतर क्या होगा. सबसे पहला रिजर्व करेंसी स्टेटस मिल गया, क्योंकि यूरो जो है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ऐसा करेंसी है आफ्टर यूएस डॉलर, विच इज बीइंग और विच हैज लार्जेस्ट रिजर्व्स इन द वर्ल्ड. यूरोपियन आइडेंटिटी मिल गई, फुल इंटीग्रेशन इनटू यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल, और इसकी वजह से यूरोप से, यूरोपियन कंट्रीज से, ऑल 27 कंट्रीज से या ऑल 21 कंट्रीज से जो यूरो को यूज करते हैं एज करेंसी, टूरिज्म बढ़ जाएगा बल्गेरिया में. ठीक है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है किसी भी कंट्री के लिए अगर उसको यूज करना है या अगर उसको अडॉप्ट करना है यूरो एज इट्स ऑफिशियल करेंसी, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है किसी भी नेशन के लिए. सबसे पहला ये होना चाहिए यूरोपियन यूनियन का मेंबर है. ठीक है, ऑल द यूरोपियन यूनियन मेंबर्स सब एक्सेप्ट डेनमार्क, ये याद रखना है, एक्सेप्ट डेनमार्क विथ इट्स ऑप्ट आउट, इसने खुद ही बोला था उस टाइम पे मुझे नहीं करना है, मस्ट इवेंचुअली ज्वाइन द यूरोजोन. जो सारे मेंबर्स हैं उनको एक ना एक टाइम पे यूरोजोन ज्वाइन करना ही है, दैट इज मस्ट, बाय मीटिंग स्ट्रिक्ट कन्वर्जेंस क्राइटेरिया. मतलब क्या है इस चीज का, दे फर्स्ट हैव टू मीट अ क्राइटेरिया. क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया इज वन, फर्स्ट इज इकोनॉमिक कन्वर्जेंस. सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में मार्केट को वैसा ही बनाना है जैसे बाकी सारे यूरोपियन नेशंस में है. सेकंड, लीगल कंप्लायंस, नेशनल लॉज और मॉनेटरी पॉलिसी को एक जैसा बनाना है. स्मूथ इंटीग्रेशन, मतलब जो कंट्री ज्वाइन करना चाहती है वो स्मूथली इंटीग्रेट हो और ज्यादा डिसरप्शन क्रिएट ना करे, देन ओनली दे कैन बी अडॉप्टेड. ठीक है. बल्गेरिया में मैंने बोला दैट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हैज बीन देयर, और ऑपोजिशन ने अभी इसको ये भी देखा है दैट ऑपोजिशन इस पे क्रिटिसिज्म कर रही है कि इसको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए था, बट दैट इज समथिंग व्हिच इज आई वुड से ग्राउंडेड इन बल्गेरिया ओनली, नॉट रेलेवेंट टू अस. हाँ, एक चीज है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है कि रशिया का फैक्टर यहाँ पे कैसे आएगा, बिकॉज रशिया हैज क्लियरली मेंशन्ड दैट ये बल्गेरिया का अडॉप्ट करना इट इज थ्रेट टू आवर फर्स्ट सॉवरेनिटी. सेकंड, रशिया ने ये क्लेम किया है दैट ऐसा होने पे देयर विल बी, और जो वहां की फार राइट पार्टी है दे आर सेइंग, जो रशिया में अपोजिशन है, दे आर सेइंग कि ऐसा करने पे, यूरो को अडॉप्ट करने पे देयर कैन बी अ क्राइसिस इन दिस रीजन. ठीक है. प्लस एक और चीज याद रखनी है, बल्गेरिया ऑलरेडी मेंबर है नाटो और यूरोपियन यूनियन दोनों का. ठीक है. अब इस चीज से रशिया इस आज के स्टेप को लेता है दैट इट इज थ्रेट टू इट्स सॉवरेनिटी. वन मोर थिंग जो याद रखना है, रशिया और बल्गेरिया दोनों ही कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती है किसके साथ, ब्लैक सी के साथ. रिमेंबर, हाउएवर जो ग्रीक क्राइसिस का मैंने बोला था दैट वाज समथिंग जहां पे ग्रीक इकोनॉमी एक्चुअली गॉट डिस्टेबलाइज्ड, और उसके बाद यूरोपियन यूनियन से उसको बहुत बार बेल आउट करना पड़ा, 3 बार बेल आउट करना पड़ा. तो रशिया इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दिस कि बल्गेरिया भी शायद ऐसा ही हो जाए कि जो ग्रीक इकोनॉमी के साथ पहले हुआ था वैसा ही बल्गेरिया के साथ भी हो सकता है. बट दैट इज समथिंग विच इज क्रिटिसिज्म इन नेचर, दैट इज येट टू बी सीन इन फ्यूचर. जब होगा वैसा तब देखा जाएगा. अभी के लिए जो हमें याद रखना है वो ये है कि रिफॉर्म क्या है, यूपीएससी के लिए कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, और वो मैंने आपको बता दिया. सो देयर बाय दिस हैज बीन अ हिस्टोरिक ट्रांजिशन, जहां पे बल्गेरिया इज नाउ इंटीग्रेटेड इनटू अ पॉपुलेशन विच इज यूजिंग और अ पॉपुलेशन ऑफ 350 मिलियन यूरोपियंस हु आर यूजिंग यूरो एज देयर मेन करेंसी. यूपीएससी ने यूरोपियन यूनियन को लेके बहुत फोकस किया है इससे पहले. जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए, ये क्वेश्चंस आप एक बार देख लेना, चेक कर लेना और इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना. हो सके तो कमेंट सेक्शंस में आंसर भी दो. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. 7 क्वेश्चंस 2016 से लेके 2024 तक जो पूछे गए थे. विद दिस आई वुड लाइक टू टेक अ लीव फ्रॉम ऑल ऑफ यू. अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो स्टार्टिंग में इस जो हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है कॉन्टैक्ट और टेलीग्राम लिंक दिया होगा, वहां पे ज्वाइन करो, पीपीटी मिल जाएगी. विद दिस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. जय हिंद.